Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject Physics, Chapter number 1, and this is lecture number 7. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. ओके, वी विल कंटिन्यू आवर टाइप्स ऑफ मोशन एंड द नेक्स्ट टाइप इज oscillatory motion. Oscillatory motion is the second type of the periodic motion. Periodic motion का second type है. First type was the circular motion. Okay. So let's see what is the oscillatory motion. The to and fro periodic motion of a body around a fixed point is called the oscillatory motion. That means to and fro. To and fro means आगे पीछे. Okay, the to and fro, if a body is moving to and fro around a fixed point, that is known as the oscillatory motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे घूम रही है तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. यू कैन सी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन इज द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. द yellow color, the long string and a circular object, you can see this is known as the pendulum. It is moved to and fro around a fixed point. So this is the best and the very common example of the oscillatory motion. आप देख सकते हैं ये जो पेंडुलम आपको वॉल क्लॉक में नज़र आ रहा है, जो येलो कलर की लंबी सी रॉड और उसके नीचे येलो कलर का सर्कुलर पार्ट, दिस इज़ नोन एज दी पेंडुलम. इसे हम कहते हैं पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है? एक ही जगह पे आगे पीछे कंटिन्यूसली घूमता रहता है. ओके, सो दिस इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे. एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, दिस इज नोन एज द सिंपल पेंडुलम. अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, like if you have ever done, if you have ever tie a stone with the string and you can move that string continuously to and fro with the stone, with the help of the string to and fro, this is also would be the example of oscillatory motion. Motion of swing, swing means झूला, आगे पीछे. ओके, जो भी पेंडुलम हो गया या कभी आपने एक पत्थर के रस्सी बांध के उसको आगे पीछे घुमाया होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? एक ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल हो जाएगा. और दूसरा जो झूला आप झूलते हो वो भी एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है और फिक्स डिस्टेंस कवर करके फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है तो फिक्स डिस्टेंस पे फिर अपनी पहली वाली जगह पे आता है. तो आगे पीछे जो झूला होता है वो झूलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट इज कंबाइंड मोशन. कंबाइंड मीन्स one or two motion is occurring at the same time, that is known as the combined motion. combined motion मतलब एक और एक से ज़्यादा मोशन अगर एक समय पे एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो उसे हम कहते हैं combined motion. Sometimes body possess two types of motion at the same time. For example, the wheel of car rotate as well as moving forward. When you roll a coin on the table, it moves in circular path as well as it moves forward. Okay, if you have ever seen the moving car or moving cycle or moving vehicle and observe the motion of the tires of that vehicles, you can see it is moving around a fixed path in a circular path, but it is also changing its position. So we can say there is a two type of motion. It can be circular motion or with the translatory motion. It can be random motion with the circular motion. ओके, अगर आपने कभी व्हीकल्स के टायर्स को देखा होगा तो वो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमते हैं, साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं. ओके, तो इसमें टू टाइप्स के मोशन होता है. एक सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है, फिक्स पॉइंट पे गोल गोल घूम रहा है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन. और वो एक आगे भी मूव कर रहा है, वो चाहे स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, स्ट्रेट रोड पे अगर कोई कार जा रही है तो मतलब वो जो टायर है उस व्हीकल का
वो लीनियर मोशन साथ में सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, और अगर वो कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब वो रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों साथ में कर रहा है। ओके, और एक कॉइन लेके आप टेबल पे घुमाइए, आप देखेंगे वो गोल गोल तो घूमता ही है, साथ में वो आगे पीछे भी अपनी पोजीशन भी चेंज करता है। सो दिस वाज द कंबाइंड मोशन। ये क्या था? कंबाइंड मोशन। सो हेयर वी कंप्लीट आवर टाइप्स ऑफ मोशन। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हमारे मोशंस कंप्लीट हो जाते हैं। सो टाइप्स आर, देयर आर 4 types of motion. First is linear motion, second is random motion, third is periodic motion, and periodic motion has 2 types again, the circular and the oscillatory motion, and the fourth one is combined motion. 4 टाइप के मोशन हमने पढ़े. First linear, that means moving on a straight road. Second is random, that means there is no fixed direction or the pattern. Third is periodic motion, that means repeat itself after a fixed interval of time. And the periodic motion again has a 2 type, that is circular motion, that means in a circular path, and oscillatory motion, that means to and fro motion. Okay, and the fourth is combined, that means having the more than one motion by an object. Clear? Next is distance and speed. So let's see what is distance and what is speed. Distance is the actual path traveled by a body in a given time. Consider a body traveling from A to B along any path between A and B. The actual length of the path that a body travels between A and B is known as the distance. Here, if the body goes from A to B via C, the distance traveled will be A, C and B. So distance travel will be different for the different paths between A and B. Okay, so distance means the whatever the total amount of the surface the area, the length you covered or covered by any object is known as the distance in a given time, in a particular time. दिए गए समय में एक ऑब्जेक्ट या एक इंसान या कोई भी एक बॉडी है, वो कितना एरिया कवर कर रही है, कितना लेंथ कवर कर रही है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. लाइक if I am traveling from Udaipur to Fatehnagar, it's a 55 kilometer in a 1 hour. So 55 किलोमीटर क्या हो गया मेरा डिस्टेंस उदयपुर से फतेहनगर. ओके, मतलब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन दिए गए टाइम में कितना डिस्टेंस, कितना रास्ता कवर कर रहा है, कितने लेंथ कवर कर रहा है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस. ओके, लाइक object is moving from point A to B, so the distance will be the length present between the A to B. And like if I am moving from Udaipur to Fatehnagar and there is a Mavli comes between the Udaipur and the Fatehnagar, so I will say that I has traveled फ्रॉम उदयपुर टू फतेहनगर वाया मावली. जैसे मैं उदयपुर से फतेहनगर आती हूँ तो बीच में एक मावली आता है, मावली विलेज आता है. ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उदयपुर से फतेहनगर मावली होकर आती हूँ. सो इफ़ देयर इज़ ए ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बट देयर इज़ अ पॉइंट सी बिटवीन दैम, सो वी कैन से द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इज़ ए, सी एंड बी. क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई बॉडी ए से बी जा रहा है लेकिन बीच में एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए, सी एंड बी. क्लियर? यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस ग्राफ. अ बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट वाया सी पॉइंट टू दी बी पॉइंट. एक बॉडी है जो ए से शुरू हो रही है लेकिन सी पॉइंट के थ्रू बी पॉइंट के पास जा रही है, मतलब सी पॉइंट से पास होके बी पॉइंट तक जा रही है, तो हम कहेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक बॉडी ने, ए, सी और बी. क्लियर? एंड द पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट और द पर्सन कैन बी वेरी. मतलब पाथ मतलब रास्ता, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं. लाइक अगर मुझे ए से बी जाना है,
तो मैं सीधा स्ट्रेट पाथ पे भी चल सकती हूँ या फिर मैं ऐसे कर्व पाथ भी ले सकती हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे होके. सो पाथ डजेंट मैटर, ओनली द टोटल अमाउंट ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मैटर. पाथ मैटर नहीं करता है, कोई भी रास्ता हो. जैसे अगर एक पर्सन फतेहनगर से उदयपुर जा रहा है, ओके, वाया ट्रेन, एक इंसान ट्रेन से जा रहा है, दूसरा इंसान बस से जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, रास्ता मैटर नहीं करता. कहाँ जा रहा है वो? फतेहनगर से उदयपुर, और रास्ता डिस्टेंस कितना होगा? 55 किलोमीटर. क्लियर? सो रास्ता मैटर नहीं करता है. सो दिस वॉज द डिस्टेंस, टोटल अमाउंट ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम. दिए गए समय में एक बॉडी कितना लेंथ कवर कर रही है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स दूरी. नेक्स्ट इज स्पीड. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड. Therefore, speed is equal to distance by time. Speed is the distance covered by an object in a given time, in a particular time is known as speed. मतलब एक फिक्स टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है या ट्रैवल कर रही है उसे हम कहते हैं स्पीड. सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. लाइक फतेहनगर से उदयपुर का डिस्टेंस कितना है? 55 किलोमीटर, और कितने घंटे में कवर होता है? 1 आवर में. सो 55 किलोमीटर बाय 1 आवर, ये क्या हो जाएगी? स्पीड. जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी स्पीड. और यू कैन राइट S इज इक्वल टू D बाय टाइम. S इज स्पीड, D इज डिस्टेंस एंड T फॉर टाइम. SI यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड इज मीटर सेकेंड. दैट मीन्स distance is measured in meter and time is in second, so मीटर पर सेकेंड. ओके, ये क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड का फॉर्मूला. SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन. अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, no matter how small these time intervals are. For example, a car running a constant speed of say 10 meter per second will cover equal distance of 10 meter in every second. So this motion, its motion will be uniform motion. Uniform means same. Uniform का मतलब क्या होता है? Same. That means if a body travel or covering any distance, okay, but in equal interval of time, that means the gap must be equal, that motion will be uniform motion. अगर एक बॉडी, एक इंसान, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, दूरी तय कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लेकिन उनकी जो टाइम है, जिस टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो टाइम, वो जो गैप होगा दो डिस्टेंस के बीच में, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. जैसे एक कार है, ओके, वो हर 10 सेकंड में 10 मीटर क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है. ओके, मान लो मैं अगर कार के थ्रू कहीं जा रही हूँ और मैं 10 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर रही हूँ, फिर से नेक्स्ट 10 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर रही हूँ, नेक्स्ट 10 मीटर की दूरी नेक्स्ट 10 सेकंड में कंप्लीट कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. मतलब मेरा डिस्टेंस तो क्या है? फिक्स है, 10 मीटर एवरी 10 मीटर. ओके, और मेरा टाइम भी क्या है? फिक्स. मतलब हर 10 सेकंड में मैं 10 मीटर की दूरी क्या कर रही हूँ? तय कर रही हूँ. तो ये मेरा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? यूनिफॉर्म मीन्स सेम. सेम व्हाट? टाइम इंटरवल. सेम क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए. मतलब जो गैप है, दो डिस्टेंस के बीच का जो गैप है, वो क्या होना चाहिए? सेम. क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. For example, if we drop a ball from a roof of a building, we will
find that it covers unequal distance in equal intervals of time. It covers, okay, like the gap between the two distance is same, equal, but the distance are different. तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब जो टाइम इंटरवल है दो डिस्टेंस के बीच का जो टाइम है वो तो सेम है. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉट सेम, और सेम क्या नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है. लेकिन वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल डिस्टेंस है उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे वी विल टेक द सेम एग्जांपल ऑफ द कार. ओके, जैसे एक कार है वो 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है 10 सेकंड में. ओके, और नेक्स्ट टाइम वो क्या कर रही है, उसी नेक्स्ट 10 सेकंड में 11 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है. तो डिस्टेंस सेम हो गया, पहले 10 था फिर 11 हो गया, लेकिन टाइम सेम है, दोनों में 10 सेकंड है. 10 सेकंड में 10 मीटर और दूसरे 10 सेकंड में 11 मीटर. तो डिस्टेंस क्या हो गया, अलग हो गया. दैट मीन्स डिस्टेंस अलग होगा, टाइम सेम होगा. जो गैप है टाइम का, दो डिस्टेंस के बीच में जो टाइम का गैप है वो सेम है. सो दिस विल नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? Here the example is given of a ball which you dropped from a roof. आपने एक छत से बॉल को छोड़ दिया है, नीचे फेंक दिया है. So it cover 4.9 meter in 1 second, and in the next second, मतलब in the next first second it is covering 14.7 meter, and in the third second it is covering 24.5 meter. So you can see the distance are variable. Distance क्या है, वेरिएबल है, लेकिन टाइम गैप क्या है, सेम है. पहले फर्स्ट सेकंड में 4.9 था, सेकंड में 14.7 था, मतलब फर्स्ट और सेकंड में गैप कितना है, 1 सेकंड का, मतलब टाइम सेम है. क्लियर? नेक्स्ट, ऐड टू योर नॉलेज. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ए, you have to focus on this diagram. The diagram is given, the figure is given. A body start from the A point and moves according to given time, given figure. Body retrace the path after the C, then reaches to D. Okay, have a look at this figure. You can see a body start from A and cover the 4 meter distance to the B. Then it moves again from B to C and cover the distance of 6 meter. So this is the table. Path means rasta, distance means the total length covered, and the displacement. I'll tell you with what is the displacement. First we discuss this table and the figure. Displacement देखते हैं, लेकिन पहले ये फिगर सॉल्व आउट करते हैं. एक बॉडी है जो A से B जा रही है, ए बी, फर्स्ट इज ए बी, फर्स्ट पाथ क्या ए बी, डिस्टेंस क्या हो गया 4 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 4 मीटर का. क्लियर? नेक्स्ट टाइम वो B से C जा रही है फिर से, तो बॉडी क्या कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ए से गई B से गई C, सो A B एंड C. तो कितना है 4 + 6 कितना हो गया 10. B से C कितना है 6 मीटर की डिस्टेंस है, तो 4 + 6 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 10, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 10. बट अब बॉडी क्या कर रही है, C से U टर्न ले रही है और फिर से B पॉइंट पे जा रही है, तो पाथ क्या हो गया A B C और B. तो 4 + 6 कितना था 10, और C से और B के बीच की दूरी कितनी थी 16, तो 4 + 6 + 6 हो गया, तो कितना हो गया 16. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर. हाउ, वी विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी. ओके, अब फिर से देखेंगे, बॉडी C से B पे आई थी, अब फिर से B से कहाँ चली गई, A के पास, A पॉइंट पे चली गई है, तो A B C A. क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 6 + 6 + 4, क्योंकि B और A के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4. क्लियर? तो ये हो गया 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. नेक्स्ट, फिर जो बॉडी है वो अब A से D तक जा रही है, आगे पीछे की तरफ जा रही है, मतलब और पीछे जा रही है, तो A B C A D, तो टोटल कितना हो गया 25. हाउ, A से B कितना था 4, B से C +6, C से B +6, B से A +4, और A से D कितना +5, तो टोटल हो गया 25. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -5 मीटर.
नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी के थ्रू कितना लेंथ या कितना रास्ता उसने तय किया है या कितना रास्ता वो ट्रैवल किया, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ पे बॉडी रुक गई है, फाइनल मीन एंड पॉइंट, जहाँ से बॉडी ने शुरू किया इनिशियल पॉइंट और जहाँ पे बॉडी रुकी वो फाइनल पॉइंट, तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बीच में चाहे वो कितना भी ट्रैवल किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक बॉडी थी जिसने ए से बी ट्रैवल किया, तब तो डिस्प्लेसमेंट 4 था, मतलब ए तो इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट था और बी क्या था, फाइनल पॉइंट, तो 4 हो गया। फिर बॉडी गई बी से सी के पास, क्लियर, मतलब बॉडी ने टोटल ए से लेके सी तक का डिस्टेंस दूरी तय की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 4 + 6, क्लियर, मतलब ए तो हो गया इनिशियल पॉइंट और सी हो गया फाइनल पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में उसने क्या किया, सी से फिर से बी पे आ गया, क्लियर। तो अब इस केस में इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4। पहले उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, डजंट मैटर, अब कितना गैप है फाइनल और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में वो देखेंगे। फिर बॉडी फिर से बी से आई ए के पास, क्लियर, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था फिर से वो वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब बॉडी ने क्या किया, ए से डी की तरफ गई, मतलब पीछे की तरफ माइनस में गई, क्लियर, तो टोटल डिस्टेंस तो ए से डी तक तो था 25, लेकिन अब फाइनल और इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया डी, बीच में कितना ट्रैवल किया मैटर नहीं करता, लेकिन अब ए से डी तक कितना ट्रैवल किया उसने, 5 मीटर, माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि वो जो पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। आप भी नंबर लाइन अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पता होगा, क्लियर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। एक बॉडी ने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल उसने ट्रैवल कितना किया है। जैसे मैं पहले उदयपुर से फ़तेहनगर आऊँ, फ़तेहनगर से आगे कोटा जाऊँ, कोटा से आगे मैं कहीं भी जाऊँ, क्लियर, तो वो मेरे क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं रोज़ उदयपुर से फ़तेहनगर आ रही हूँ और फ़तेहनगर से फिर से उदयपुर जा रही हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ओके। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 55 आने का, 55 जाने का, तो हो गया 110 डिस्टेंस, क्लियर। आई होप you clear with the Fatehnagar Udaipur example, clear. So here we complete our lecture along with the chapter also. Next time we will do the activities and the question answers. Let's do the homework. Homework is distance, the actual or the total length covered by an object, and displacement, the difference between the initial that means starting point and the final or the end point, clear। जितना भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है, डिफरेंस है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock every day in a good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। आपको अपना होमवर्क डेली 9 बजे से पहले रफ नोटबुक में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ओके। थैंक यू, अंटिल देन हैव अ नाइस डे।